I've got a sister, I've got a niece. I don't want her to grow up in the same mindset. Neither do I want my nephew to grow up in that same mindset. And my brother-in-law, he really does share the work around the house, and especially bringing up the kids. So I think it's a great campaign. सेकेंड क्वेश्चन ही मैरी मैम और सर का जो रियल लाइफ में जो एक दूसरे के प्रति जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको कितना इंस्पायर करता है ये आप बताएं हमें। I think it's great, man. I think she's playing a sport which is usually associated with machismo and men and all that, you know. And he's probably playing a part which usually is associated with women. But I don't see. I think he's a bigger nurturer in that sense because he's allowing her to go live her dream, which is a very, very big thing. I mean, that is the kind of support which you would want in your life. And since now there are no gender biases left, women are mostly doing all the things. I mean, women are in the Air Force. They'll be flying planes now, even in India, you know. So since that has happened, somebody has to do the other part as well. Like behind every hero, there is somebody who's also slogging their ass off to help that hero. So I think it's very important, and I'm in admiration of Onlur. It's not easy, especially coming from patriarchal society, to get into that role and accept it. I'm sure he must have faced some sort of, you know, difficulties with the local people around. But now he's seen through it and not bought into their biases. And I think I'm much in admiration of them. And I think this is a great couple for the future, for the future of our country, where, you know, women are looked at in a certain way. Yeah. I'm sure Mary could fix that. हेलो रणदीप जी, आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, सेंसर बोर्ड का क्या रोल है आपके हिसाब से? ओके सर, क्या बात चल रही है, आप क्या बात कर रहे हो? तो उनका इंटरफेरेंस जरूरी है या नहीं? आप क्या कहना क्या है इसके सोशल मीडिया पे? हाँ, या उन्हें भी किसी एरियल जैसे सर्फ में दुलाना पड़ेगा? सॉरी, उन्हें भी ऐसा कोई सर्फ की जरूरत है? उनका इंटरफेरेंस होना आजकल। जी, आप स्टेटमेंट्स दे रहे हो तो मैं हाँ या ना बोलूं या क्या बोलूं, बताइए। आपका क्वेश्चन फ्रेज कीजिए सर। आपका कहना क्या है? जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, वो जो इंटरफेरेंस करते हैं आजकल, सेंसर बोर्ड, सोशल मीडिया कैसे इंटरफेरेंस कर रहा उड़ता है? पंजाब को उन्होंने बैन किया था ऐसा। हाँ, हेलो मेरी जी नमस्कार। नमस्कार। आपके ओलंपिक एंट्री के बारे में क्या कुछ चल रहा है आगे एसोसिएशन, क्योंकि इंडिया में तो है ही नहीं बॉक्सिंग की। अभी तो जो आप पता चला बताया और मैं वो बताया वही है। अभी वाइल्ड कार्ड के बाद में क्या हो रहा है, होगा मतलब अभी डिटेल्स तो अभी तक इंफॉर्मेशन मतलब मिला नहीं। शायद ये लास्ट मंथ में शायद मिल जाएगा, जो मिलेगा या ना मिलेगा। I think we should start a campaign saying I think so. wild card for Mary. I think that's a campaign that should be there. Hello. And we want you to go and box their ears. हेलो या हेलो रणदीप, मेरा सवाल आपसे है। रिसेंटली अनुराग कश्यप की मच अवेटेड फिल्म उड़ता पंजाब इंटरनेट पे लीक हो गई है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, बीइंग अ एक्टर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी? I think any film which comes out on the internet while it's still at theaters is a form of piracy, and I think that should not happen because a lot of effort and money goes into making these films, and I think it is kicking people in the stomach, you know, जैसे हिंदी में बोलते हैं पेट पे लात मारने वाली बात है। Also, news has appeared recently that some misunderstanding went between you and Richa Chadda, and you have called Richa Chadda and she started crying. Is there any other question, bro? What are we talking? What are you talking, man? ओके रणदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम शेयर द लोड की बात करते हैं, जिम्मेदारी का एहसास होता है, यू नो, खास करके मर्द औरतों की जिम्मेदारी संभालें या उनके साथ खड़े हों कंधे से कंधा मिला के। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आप इन फ्यूचर जब भी आपकी शादी होती है, जब भी जिससे भी आप करते हैं, उनके लिए क्या ऐसी एक जिम्मेदारी है जो आप करना चाहेंगे? क्या ऐसा एक काम है जो अलग होगा उनके लिए?
यार इतना दूर का सवाल तुमने पूछ लिया। Totally what, you know, even the course of interaction, you know, while the uncle was इसमें there. बहुत सारे प्रोबेबल्स हैं कि जब मेरे को लड़की मिलेगी और जब मेरी शादी होगी तब मैं उसके लिए क्या करूंगा। आई थिंक मैंने इतनी दूर सोचा नहीं है भाई, बट मेरा इतना मानना ज़रूर है कि आज के ज़माने में हम जो बदलाव बाहर सोसाइटी में और देश में चाहते हैं उसकी शुरुआत आपके घर पे होनी ज़रूरी है। आप घर पे कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वही वो जाके दुनिया में करेंगे। तो बहुत सारे सोशल इविल्स जो जेंडर बायस की वजह से हैं, उनको आप सोशली और पब्लिकली जो आप कंडेम कर रहे हैं और आप जो चाहते हैं उसकी सबसे अच्छी शुरुआत घर पे होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम। ओके, यकीनन मेरे बहुत से मित्रों ने पूछा और मुझे शायद उम्मीद है कि आप रणदीप इस बात का जवाब सही तरह से दे पाएं। यू नो, आप खुद इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी बात पूरी तरह से रखते हैं, एकदम ब्लंट तरीके से रखते हैं। जो आपको लगता है आप वो कह देते हैं। जो माहौल इस वक्त चल रहा है इंडस्ट्री में उड़ता पंजाब को लेकर, और अब रिसेंटली फिल्म भी लीक हो जाती है, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर कैंपेन, यू नो द इवेंट इज माइंड ब्लोइंग व्हाट यू डूइंग इज, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है जिस तरह का पूरा ये एपिसोड चला है, कहीं ना कहीं यू नो फ्रीडम एक्सप्रेशन पे पाबंदी लगी और अब फिल्म ही लीक हो गई? आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, उसे बॉलीवुड को सपोर्ट करना चाहिए, सेंसर बोर्ड को थोड़ा सा और खुल के। पहली बात तो ये है कि ये सेंसर बोर्ड नहीं है, इसका नाम सर्टिफिकेशन बोर्ड है। और जो उनका मकसद है कि लोगों को वो पहले बता दें कि इस उम्र से ज़्यादा या इस उम्र से कम लोग इस फिल्म को ना देखें। उनका काम सेंसरशिप का नहीं है, सर्टिफिकेशन का काम है, और कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है और ऐसा हो गया है। तो इसके ये मुद्दा उस बारे में सॉल्व हो गया है। जहाँ तक कि और जहाँ तक कि कंटेंट की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि सब कुछ तो इंटरनेट पे वैसे भी अवेलेबल है सभी को, तो उसको आप किसी से छुपा नहीं सकते हैं, आप उसको सिर्फ सर्टिफिकेशन ही दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो इंटरनेट पे लीक है वो भी फिल्म अगर आप उसको सेंसर भी कर देते तो कहीं ना कहीं घूम के इंटरनेट पे आ ही जाती। इंटरनेट पे फिल्म आना, ये कोई पहली फिल्म इंटरनेट पे नहीं आई है, बहुत सारी फिल्म ऐसे प्लेजराइज होती हैं, उसको पायरेसी बोलते हैं। और आई एम अगेंस्ट पायरेसी, बिकॉज पायरेसी ये जो पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके पेट पे लात है। आप प्लीज़ कंप्यूटर पे डाउनलोड करके फिल्में ना देखें। फिल्में अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको सिनेमा घर में जाके देखें। ओके? और कोई मेरा एक्सपर्टीज चाहिए तुम्हें किसी और चीज़ पे?